Hello everyone, this is Yogesh and welcome back to the channel. So today we are going to talk about problem of the day, right? तो हम आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं and आज का प्रॉब्लम जो मैं तुम्हारे संग डिस्कस करने वाला हूं. But before that, if you are new to our channel, then please subscribe this channel and as well as press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new videos, right? So without wasting any time, let's start our video. So today's problem is swap bits, right? So let's read the problem. So in the problem it's written that given a number x and a two positions from the right side, okay? So in binary representation of x, write a program that swap n bits at given two positions and return the result, okay? So you will be given a number x, okay, and two positions, that is in a binary representation of x. तो हमारा x का binary representation हमें लिखना है, two positions दिए होंगे from the right side. We have to swap the n bits from that two positions and after that we have to return the number. So I guess तुम्हें नहीं समझ आया होगा. So let me take the example. Here it is 47. So the number which is x is 47. We will be given two positions, so p1 and p2, that is 1 and 5. So p1 is 1 and p2 is 5. Then we have the n ka value which is 3. Let's see the binary representation of x. 0 0 1 0 0 1 0, okay, and then 1 1 1 1 1 1 1 1, right? So this is the binary representation of 47, right? Our number is 47, so binary representation of 47 is this one, 0 0 1 0 1 1 1 1. What was given in the problem? Two locations will be given, that is two positions will be given which are from the right side, right? It's written from the right side, that is from here, it is from the right side. So we will go to the position number 1 and position number 2. Let's move on. So position is 0 1 2 3 4 5 6 7. So let's move on to the position number 1, that is this guy, and position number 5, that is this guy. Now we have to take n entries from that position, that is we have 3, n ka value is 3, so we have to take 3 entries. So what I will take, so from this location I have to take 3 entries. I have taken 3 entries. From this location I have to take 3 entries. I have taken 3 entries. Now swap this whole two datas. तो ये जो तीन बंदे 1 1 1 ये सारे 5 6 7 लोकेशन में आ जाएंगे और जो 5 6 7 लोकेशन वाले बंदे लोग हैं वो लोग 1 2 and 3 लोकेशन में आ जाएंगे. तो फाइनली इट विल बी look like this, 1 1 1 0, then ये 0 0 1 यहाँ आ जाएंगे, 0 0 1 and this will become 1, this one, right? अब इस नंबर, ये बेसिकली हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, राइट? इसे वापस हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो दैट विल बिकम 227, ठीक है? सो दिस विल बिकम 227. लेट मी चेक दिस अगेन, 111 000 000 11. So this will now be converted to 227. So this is the overall which we have to perform in this problem. The name of the problem was swap bits. तो अगर मैं फिर से ब्रीफ में बता दूं, तो नंबर दिया हुआ है, टू पोजीशन दिए हुए हैं, n का वैल्यू दिया हुआ है. वी हैव टू राइट फर्स्ट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट x which is given, that is 47. We have written that we have given two positions from the right side, so we will move on to those locations, that is location number 1 and location number 5 from the right side. आ गए हम लोग. Now next we have to take n entries from both the position p1 and p2. So as the n का value was 3, so we have taken 3 data from p1 and 3 data from p2. So this is p1, this is p2. We have taken 3 entries from p1, 3 entries from p2. Now swap the whole data of p1 with p2. That is हमें इस तरह swap करना है. Either you can like simply ये करना है कि ये वाला जो 1 नंबर लोकेशन है 5 के संग swap हो जाएगा. Location number 2 will be swapped with location number 6. Location number 3 will be swapped with लोकेशन नंबर 7, राइट? तो स्वैप करना है. ये हमारा नया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया है, इसे वापस हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है. तो नंबर इज नाउ 227. So this is the problem statement, right? And simply you have to perform this only. So I guess a problem is very simple one, right? And in the here what is written that we have to do in constant complexity, ठीक है? तो हमें constant complexity में करनी है. So we know that if we have a number of 10 to the power 9, so maximum bits can be 32 bits, right? If we have a 10 to the power 9 number, कोई भी नंबर 10 to the power 9 तक है, तो उसका मैक्सिमम बिट्स अगर मैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मैक्सिमम 32 में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? इफ वी हैव 10 to the power 18, so that can be converted to 64 मैक्सिमम, राइट? सो मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां पर n का वैल्यू इज वेरी लेस, दैट इज x का वैल्यू इज 200, वेरी लेस, 200 है. 200 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इन 8 बिट्स, राइट?
200 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इन 8 बिट्स। तो अगर मैं n का बफर लेकर चलूं, लाइक इट इज रिटन n का वैल्यू इज 5, क्योंकि हमें यार हो सकता है कि हमारा 8th जो बिट है वो हमारा P2 हो जाए, एंड देन वी हैव टू टेक n एंट्रीज। तो यहां से हमें पूरा n एंट्रीज लेना होगा, तो वी नीड सम ट्रेलिंग जीरोस, राइट, वी नीड सम ट्रेलिंग जीरोस। सो n का वैल्यू इज गिवन 5, so you can take 8 plus 5, like our total complexity will be 8 plus 5, but यार 32 चलाओ यार, 8 plus 5 चलाओ, 8 9 10 11 4 13, right, 13 लूप चलाओ या फिर 32 लूप चलाओ, मतलब एक ही है, because that is a constant complexity, right, that is a constant complexity. So for that I have taken 32 only, but you can run the loop for, like you can take the array of 13 size as well, 13 14 का कोई issue नहीं होगा, right, but I have taken for the safe side, I have taken 32, right. So let's see how we are doing that. तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले जो हमारा नंबर है दैट इज 47 व्हिच वाज रिटन हियर, द नंबर 47, तो ये तो मुझे पता है कि 32 बिट्स के अंदर हो जाएगा। सो आई हैव टेकन अ बिट एरे ऑफ 32 बिट्स एंड आई एम राइटिंग एवरीवन एज 0। नाउ टेक एन इंडेक्स ऑफ 31, दैट इज जो लास्ट इंडेक्स है वो 31 हमारा होने वाला है, करेक्ट। नाउ हमें तो पता ही है इसको कैसे हम लोग बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक इफ यू नो इफ वी हैव 11, राइट, सो क्या करते हैं हम लोग, 2 5 10, राइट, कैरी 1 हो गया हमारा, कैरी 1 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 2 4 रिमाइंडर 1 हो गया, फिर 2 1 2 रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा 11 क्या होता है 1 0 1 1, राइट, 8 9 10 11, सो दिस इज माय 11। तो हमें यार 11 को इसमें कन्वर्ट करना है। हाउ आई कैन परफॉर्म दैट, सिंपली विद दिस व्हाइल लूप। व्हाट आई एम डूइंग इज दैट x इज नॉट इक्वल टू 1, जब तक ये हमारा 1 नहीं हो जाता, राइट, जब तक मेरा x वैल्यू 1 नहीं हो जाता तब तक मुझे ये काम करते रहना। व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई एम टेकिंग द रिमाइंडर, या मैं क्या किया हूं, 2 5 10, रिमाइंडर इज 1, राइट, रिमाइंडर इज 1, सो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। सो रिमाइंडर आई एम स्टोरिंग एट द IDX वाला वैल्यू और उसको माइनस माइनस में करते रह रहा हूं फॉर द नेक्स्ट आइटरेशंस, एंड x को मैं क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं x by 2 से। व्हाई, बिकॉज बाय नाउ माय करंट नंबर इज 5, सो हाउ आई एम गेटिंग 5, दैट इज x by 2, 11 by 2, दैट इज 5, करेक्ट। सो आई एम गेटिंग दिस, सो आई एम रनिंग अ while loop until and unless I am getting x equals to 1, राइट। तो ये हमारा यार ये while loop भी बेसिकली log n टाइम चल रहा है, तो वो भी 32 से ज्यादा नहीं चल रहा, राइट। तो वी कैन से इट इज आल्सो अंडर 32 only. Now what we have to do is that now we have got this thing, we have got this binary representation. Now we will move on to the P1 and P2 value. तो हमें तो P1 P2 इस तरह कुछ दिया है 1 and 5, but we have to go to in that array का वो इंडेक्स में जाना है, राइट। सो हमारा यहां से 0 काउंटिंग हो रहा है, बट इन array we have counting from starting 0 1 2 like this, correct। हम लोग यहां पर देख रहे हैं 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द राइट साइड, बट इन द array which we have taken it starts from the left side, that is 0 1 2 like this. So like that we have to adjust P1 and P2, so that's why यहां पर मैं एक 1 लिख दिया हूं, दैट इज लास्ट वाला, ये 1 हमारा एक्सक्लूड हो जा रहा था, दिस गाय, ये 1 एक्सक्लूड हो रहा था, दैट इज यहां पर, ठीक है, ये वाला हमारा नहीं आ रहा था व्हाइल लूप के अंदर, इसलिए मैं इसको बाहर एक बार फिर से कर दिया। सो आई हैव अपडेटेड टेकन अपडेटेड P1 एंड अपडेटेड P2, हाउ 31 minus P1 31 minus P2, लाइक अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा P1 एंड P2 का वैल्यू, दैट इज 31 लेंथ था 0 से 31, सो P1 तो माइनस करोगे, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ P1 इज माय 1, सो 31 minus 1 इज 30, सो लास्ट सेकंड वाला जो इंडेक्स होगा वो मेरा 30 होने वाला है, राइट। तो उसके हिसाब से मैं P1 P2 को मैं अपडेट कर दिया। नाउ सिंपली रन अ लूप फॉर n टाइम्स, व्हाट आई टोल्ड, सिंपली यू हैव टू स्वैप दिस गाय विद दिस गाय, देन स्वैप दिस गाय विद दिस गाय, राइट। So simply you know the location of P1, you know the location of P2, simply swap these guys till n entries, right? So simply run a loop for n times, simply run a loop for n times, swap that 2 entries and update their इंडेक्स, दैट इज अपडेटेड P1 और अपडेटेड P2 को एक बार डिक्रीमेंट करना है, दैट इज P1 हमारा यहां आ जाएगा, P2 हमारा यहां आ जाएगा, दैट इज एक बार पीछे चला जाएगा, करेक्ट। सो या दैट इज द थिंग, एंड नाउ आवर अपडेटेड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन माय बिट एरे, राइट। तो हमारा जो अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन है वो बिट एरे मेरा आ चुका है, राइट। नाउ आई वांट द डेसिमल नंबर, वी हैव अ बाइनरी नंबर एंड नाउ आई हैव टू कन्वर्ट अगेन इन डेसिमल नंबर, सो हाउ आई विल डू दैट, सो सिंपली आई हैव टेकन एन आंसर विद वैल्यू एज 0, नाउ running a loop from 31 to 0, that is I am running a loop from the end, right, I am running a loop from the end 31 30 29 28 like this and till 0, and now what we have to do is that I think you know, right, how we calculate. For example, we have 11 is 1011, what we have to do is that simply what you have to do, 2 की power 0 into this plus 2 की power 1 into this plus 2 की power 2 0 1 2 plus
2 की पावर 3 into 3, right? 0 1 2 3, that is this index 0 1 2 and 3. So 2 की पावर 0 into this guy, 2 की पावर 1 into this guy, 2 की पावर 2 into this guy, 2 की पावर 3 into this guy. Simply add these guys and you will get a decimal number, right? तो बस यही मैं कर रहा हूं यहाँ पर, लास्ट से लूप चलाया मैं, सिंपली आंसर में आंसर प्लस पावर ऑफ 2 की पावर 31 माइनस आई मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज स्टार्टिंग इज विद 0 देन 1 देन 2, दैट्स व्हाई 31 माइनस आई एंड इनटू बिट एरे ऑफ आई, दैट इज ईच एंड एवरी डेटा, ठीक है? ईच एंड एवरी डेटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 वाला वेरिएंट से एंड देन आई एम एडिंग दोस थिंग इन माय आंसर. सो दैट इज द थिंग आई एम डूइंग हियर एंड फाइनली आई एम गेटिंग द आंसर in my ANS variable, right? So finally I am doing a submit and let's see the output. So I guess this will be correct only because earlier I also solved this. So yeah, problem is solved successfully. 115 सारे टेस्ट पास हो गए हैं. I guess you've understood this problem. This was very easy problem, like not too tough. You can solve using some bit mask, using that as well. Bit mask भी तुम use कर सकते हो, but this was a very easy approach. That's why I've explained to, because सिर्फ constant time बोला था, यहाँ हमारा 32 loops चल रहा है, तो that is also equivalent to constant time, right? So this was everything related to today's video. I guess तुम्हें समझ आ गया होगा. सही में समझ आ गया तो वीडियो को यार लाइक मार देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. चलो ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. आज मैं तुम्हें एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बताने जा रहा हूं, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूटन स्कूल. और यहाँ पर लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई पैसे यहाँ पर नहीं लग रहे होंगे, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पर बहुत सारे कैश प्राइजेस है, बहुत सारे गैजेट्स है वर्थ ₹10 lakhs. लाइक यू कैन सी दैट टॉप कोडर्स आर गेटिंग 1 lakh rupees, 50,000, 25,000, 15,000. बहुत सारे कैश प्राइजेस है. तो हाउ यू आर गोइंग टू रजिस्टर? सो सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस रजिस्टर बटन को क्लिक करना है एंड द लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तुम अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हो और फिर तुम्हें एक सक्सेसफुल मेल आ जाएगा. आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट अ पेज लाइक दिस वेयर यू विल गेट सम इंस्ट्रक्शन. और 31st के पहले तुम्हें सारा रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्लीज फटाफट रजिस्ट्रेशन करो, बिकॉज उसके बाद कॉन्टेस्ट लाइव हो जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Go and check out the descriptions, all the links are given.